یہ کہانی ایک اللہ والی کی جس کا ایمان چٹانوں سے زیادہ مضبوط تھا، جس کی صبر کی گہرائی سمندر سے بھی زیادہ تھی۔ ایک گاؤں جہاں زمین پیاسی تھی اور دل بھی ویران تھے، جہاں دن کی شروعات امید سے ہوتی مگر شام کی مایوسی کی چادر اوڑھ لیتی۔ لوگ پانی کی ایک بوند کے لیے ترستے، لیکن اصل پیاس کسی اور چیز کی تھی، ایمان کی، یقین کی، ہدایت کی۔ مگر پھر کچھ ایسا ہوا جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ کیا یہ کسی کا وہم تھا یا واقعی کوئی معجزہ؟ کیا یہ آزمائش کا خاتمہ تھا یا کسی اور امتحان کا آغاز؟ یہ کہانی آپ کو ایک ایسی سچائی سے روبرو کرائے گی جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ آخر ایسا کیا ہوا کہ پورا گاؤں دنگ رہ گیا؟ جاننے کے لیے کہانی آخری تک ضرور دیکھیں، کیونکہ حقیقت وہ نہیں جو نظر آ رہی ہے۔ بغداد کے گاؤں میں جہاں پانی کی کمی تھی، چاروں طرف صرف ریگستان تھا، وہاں ایک ایسا قبیلہ آزاد تھا جس کے دل سخت تھے، سوکھ چکے تھے، ان کے دل پتھر جیسے بن چکے تھے۔ نہ ان میں احساس تھا، نہ ہی دوسروں کے لیے کوئی رحم، لیکن پھر بھی وہ ایک ایسے عذاب کا سامنا کر رہے تھے جس سے وہ کبھی چھٹکارا نہیں ملنے والا تھا۔ وہ جس گاؤں میں رہتے تھے وہاں کی زمین بہت سخت تھی، وہاں پانی کا نام اور نشان نہیں تھا۔ جہاں بھی کنواں کھودتا وہاں صرف کڑوا پانی نکلتا۔ جن کی زندگی بہت تکلیف میں گزر رہی تھی، اونٹ پہ سوار ہو کر وہ میلوں دور سفر کرتے، تب جا کر انہیں کہیں سے پانی ملتا اور پھر اسے اپنے گاؤں لاتے، لیکن یہ کام ان کے لیے بہت مشکل تھا۔ یہ لوگ یہودی تھے، اسلام سے بہت دور۔ اس کے برعکس پاس کے ایک گاؤں میں ہر نعمت موجود تھی۔ اس گاؤں میں ایک بزرگ رہتے تھے، حضرت صاحب کی عمر 80 سال ہو چکی تھی، لیکن وہ اللہ کے بہت نیک اور پہنچے ہوئے بزرگ تھے۔ ان کا چہرہ نورانی تھا، جب بھی وہ بولتے ایسا لگتا جیسے ان کے لفظوں سے پھول جھڑ رہے ہیں۔ ہر کوئی ان کی بہت عزت کرتا تھا۔ حضرت صاحب 5 وقت کی نمازی تھے، انہوں نے کبھی بھی ایسا نماز قضا نہیں کی۔ تب وہ تہجد گزارتے تھے، اللہ کے پیارے بندے تھے، ان کے دل میں یقین بہت مضبوط تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں بہت سفر کیے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اللہ کے دین کی خاطر سفر کرو تبھی منزل ملتی ہے۔ انہوں نے اللہ کے دین کی خاطر پھر بہت دور دور سے علاقوں کا سفر کیا۔ ان کی زندگی میں بہت سے واقعات آئے، بہت سی آزمائشیں آئیں، لیکن وہ ہر حال میں اپنے اللہ پہ یقین رکھتے تھے، جو اپنے نوجوانوں کو بتایا کرتے تھے۔ وہ ہر روز اپنے گاؤں میں ایک محفل لگاتے جہاں پہ لوگوں کو دین کا درس دیتے اور نیک راہ پر چلنے کی اچھی اچھی باتیں بتاتے۔ لوگوں کے دل پہ ان کی باتیں بہت اثر کرتی تھی، اس لیے طرح دوپہر کا اللہ والے صاحب درخت کے نیچے سو رہے تھے۔ وہ زمین پہ سونے کے عادی تھے اور ان کے دل کے اندر دنیا کی ہوس بالکل نہیں تھی۔ بہت سارے ان کے شاگرد تھے جو ان سے دین کی تبلیغ لے کر اپنی زندگی بدل چکے تھے، اور گاؤں کے بہت سارے نوجوان ان کے پاس ہر روز درس لینے آیا کرتے تھے۔ ایک دن ہوا یوں کہ عصر کا وقت تھا، بزرگ نماز ادا کر کے جنگل میں روانہ ہو گئے، کیونکہ وہ زیادہ تر تنہا رہ کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک دن وہ جنگل میں جاتے ہیں تو جنگل بہت گھنا تھا۔ ایک سایہ دار خوبصورت درخت جس کا بہت بڑا تھا، وہ اللہ والے حضرت صاحب کو بہت پسند آیا۔ ان کا دل کرتا کہ وہ اس کے نیچے آرام کریں۔ ویسے بھی گرمی بہت تھی۔ اللہ والے بزرگ نماز عصر ادا کر کے اسی درخت کے نیچے آرام فرمانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ نہ جانے کب ان کی آنکھ لگ گئی۔ حضرت صاحب ایک خواب دیکھتے ہیں، ایک ایسا گاؤں جس میں چاروں طرف گرد ہی گرد ہے، وہاں پر لوگ ہیں لیکن ان کے چہرے واضح نہیں ہیں۔ کچھ لوگ بھاگ رہے ہیں، کچھ لوگ زمین پہ گرے ہیں پڑے ہیں، کچھ ایسی چیزیں کی تلاش میں ہیں جو ان کو بہت عزیز ہو لیکن ان کے پاس نہیں ہے۔ پر ایک بچہ جو اللہ والے بزرگ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، کیا آپ ہماری مدد کریں گے؟ کیا آپ ہماری مدد کریں گے؟ کیا آپ ہماری مدد کریں گے؟ یہ کہہ کر بچہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اسی دوران حضرت صاحب کی آنکھ کھلتی ہے۔ اس دوران ان کی پسینہ آ چکا تھا، وہ ایک دم سے اٹھے۔ آج سے پہلے انہوں نے ایسا کبھی خواب نہیں دیکھا تھا۔
इस ख्वाब ने उनको बहुत परेशान कर दिया। हजरत साहब सोच में पड़ गए कि अल्लाह तबारक व तआला इस ख्वाब की ताबीर क्या हो सकती है। वह तो अल्लाह के नेक बंदे थे, अल्लाह के बहुत करीब थे, नमाज पढ़ते थे, रोज़े रखते थे और पूरा पूरा दिन क़याम में रहते थे। वो समझ चुके थे कि कुछ ऐसा है जिसके पीछे उनको यहाँ से निकालना पड़ेगा। अल्लाह वाले बुजुर्ग बिना कुछ सोचे अपने गांव वापस आते हैं और सब गांव वालों को आवाज़ लगाते हैं, ऐ मेरे मुसलमान साथियों, लगता है मेरे सफ़र का वक्त आ चुका है। मैं अल्लाह की राह में सफ़र के लिए रवाना हो रहा हूँ। तुम लोगों ने मेरे लिए गए सबक नहीं भूलने, अपनी इबादत में कोई रुकावटें नहीं डालनी, ताकि मैं आऊँ तो तुम लोग ऐसे ही अल्लाह के जिक्र व सरकार में मशगूल रहो। हो सकता है कि मैं कभी वापस भी ना आऊँ, क्योंकि मैं ऐसे सफ़र पे निकल रहा हूँ जिसकी मंजिल का मुझे बिल्कुल पता नहीं है। कुछ नौजवान उनके साथ आए और कहने लगे, हजरत साहब आप कैसी बातें कर रहे हैं, यह कौन सा सफ़र है, आप कहाँ जाएंगे? आपकी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है, वैसे भी आप लाठी के सहारे चलते हैं और आप सफ़र की बात कर रहे हैं। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आप हज पे रवाना हो रहे हैं। हजरत साहब कहने लगे, नहीं, मैं हज पे रवाना नहीं हो रहा हूँ, मैं एक ऐसे सफ़र पे जा रहा हूँ जिसकी मंजिल का पता नहीं। अगर मंजिल का पता होता तो मैं तुम लोगों को बता देता। वह लोग खामोश हो गए, दुआ देने लगे कि आप कामयाब ही वापस लौटें। हमारी दुआ है। हजरत साहब के पास एक थैला था, इस थैले में एक पानी का बर्तन था, उनकी लाठी थी और एक गिलास जो इस थैले के अंदर उन्होंने डाला हुआ था। इन 3 चीज़ों के साथ वह अपना सफ़र शुरू करते हैं। गांव वालों को उनको पुख्ता ईमान और बेखौफ का अंदाज़ा था, क्योंकि वह सिर्फ अल्लाह से ही डरते थे, उनको किसी चीज़ का खौफ नहीं था। वो जानते थे कि इसलिए उन्होंने ज़्यादा सवाल नहीं किए। इस तरह हजरत साहब अपना सफ़र शुरू करते हैं। गर्मियों का वक्त था, पानी की ककल थी। शहर में जा चुके सहरा में कोई आदमी जाता दूर दूर तक नहीं नज़र आ रहा था, नाम और निशान नहीं था। अल्लाह वाले बुजुर्ग जोहर की नमाज इस शहर में अता करते हैं। पानी नहीं था, इसलिए वह मिट्टी के साथ समेट लेट खड़ा हो गए। वह ऊँट को देखते एकदम से हैरान होते हैं कि इस वीरान में इस जगह ऊँट कहाँ से आया। ऊँट के पास उन्होंने एक शख्स नज़र आया जो नमाज में मशगूल होता है। वह कोई रईस शख्स नहीं था, तिजारत के लिए निकला था, कोई रास्ता भटक कर यहाँ आ पहुँचा। उसके पास पानी था। अल्लाह वाले साहब को उसके प्यास लगी थी। उन्होंने उससे पानी मांगा तो दिल का अच्छा था, उसने पानी दे दिया। हजरत साहब से सवाल करने लगा, बुजुर्ग आप अल्लाह के नेक मालूम होते हैं, उम्र की आपकी ज़्यादा है, आप इस वीरान में क्या कर रहे हैं? हजरत साहब मुस्कुराने लगे और कहने लगे, अगर मैं तुमसे यही सवाल पूछूं तो तुम क्या जवाब दोगे? कहने लगा, हजरत साहब मैं एक सौगादर हूँ, तिजारत के लिए सिलसिले की दूसरे शहर जा रहा हूँ, रास्ता भटक कर यहाँ पहुँचा हूँ, मुझे नहीं पता कि मेरी मंजिल किस तरफ है। हजरत साहब मुस्कुराने लगे और कहने लगे, बस ऐसे ही समझो कि मैं भी तुम्हारी ही तरह हूँ कि मुझे भी मंजिल का पता नहीं। मेरा सफ़र ऐसा है जिसकी मंजिल का मुझे इल्म नहीं, लेकिन मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूँ। जहाँ से पीछे चले जाओ, जहाँ से आया हूँ वहाँ तुम एक गांव में पहुँच जाओगे, वहाँ से तुम अपनी मंजिल पे पहुँच सकते हो। वो शख्स कहने लगा, हजरत साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे रास्ता बताया, मैं तो बहुत परेशान हो चुका था, लेकिन आप कहाँ जाएंगे? यह इतना बड़ा वीरान शहर है और आप कहाँ जाएंगे? भूखे प्यासे हजरत साहब मुस्कुराने लगे और कहने लगे, तुम मेरी फिक्र छोड़ो, मेरा फिक्र करने वाला ऊपर खड़ा और वह हर वक्त मेरे साथ है। उनकी बातें ऐसी थी, जो भी सुनता था उनसे बहुत मुतासिर होता, क्योंकि वह सिर्फ उनकी बातें नहीं भी उनका यकीन था। उनके यकीन ने बहुत सारे लोगों का दिल बदला था। वह शख्स उनका शुक्रिया अता करके पानी का एक मटका उनको देकर वहाँ से रवाना हो गया। अल्लाह वाले बुजुर्ग रात उसी के सहारे गुजारते थे, अल्लाह की इबादत करते। एक दिन ख्वाब देखते हैं कि एक तारा आसमान से टूटता है, उनकी गोद में आ जाता है। सुबह वह बेदार होते हैं तो उन्होंने एक ख्वाब की समझ आ रही थी, यकीनन वह अपनी मंजिल के करीब हैं।
वो अपना सफ़र फिर से शुरू करते हैं। चलते चलते उनकी टांगों में दर्द होने लगा था, क्योंकि वो पहले से बुजुर्ग थे और सफ़र का लंबा करके आ रहे थे। प्यास भी उनको लगी थी, लेकिन उनके पास जो पानी था उन्होंने वह पीकर प्यास बुझा ली। लेकिन अब उनसे मजीद चला नहीं जा रहा था। दुआ करने लगे, मेरे अल्लाह, तूने ही मेरी मदद करनी है, मुझे हिम्मत देनी है, मंजिल तक पहुंचने में मेरी मदद करो, क्योंकि इस मंजिल को सिर्फ आप ही जानते हैं, मुझे कुछ पता नहीं। हजरत साहब के जिस्म में कुछ ताकत आई तो वो दोबारा अपना सफ़र शुरू करते हैं। इस बार उनको थकावट बिल्कुल नहीं हुई और चलते चलते एक जंगल से गुजरते हैं। वहाँ के जंगली जानवर की खौफनाक आवाज़ें इस जंगल से आ रही थी, लेकिन किसी की मजाल नहीं थी कि वो उनको नुकसान पहुँचाएं। वो चलते जा रहे थे, रास्ते खुद ब खुद, जहाँ उनके सामने एक ऐसा दिल दहला देने वाला मंजर था कि हजरत साहब कांप उठे। वहाँ पे लोगों की शख्सियत थी, उनकी चमड़ी सूखी सूख चेहरे पे कोई रौनक नहीं थी। दरअसल जैसे उनके चेहरे स्याह से थे, वैसे ही उनके दिल भी स्याह हो चुके थे। वो जमीन बंजर थी, एक भी हरा भरा दरख्त नहीं था। हजरत साहब को एक ऐसा झोपड़ी नजर आता है, उस गांव में मौजूद थी। वहाँ पर एक गरीब औरत थी जिसकी हालत बहुत बिगड़ चुकी थी। हजरत साहब उनके पास बैठ जाते हैं और उसे सलाम करते हैं। वो औरत मुसलमान थी, रोने लगी और कहने लगी, आप कौन हैं और आप यहाँ कैसे आ गए? क्या अल्लाह ने आपको हमारे पास भेजा है, मगर आप भी उनका सामना नहीं कर पाएंगे। वो बहुत जालिम हैं, उनके अंदर दिल नहीं है, आप उनके सामने कैसे टिक पाएंगे? वो किसी की भी नहीं सुनते, दिल स्याह हो चुका है। चले जाइए, मैं कहती हूँ आप यहाँ से वापस मत आइएगा, मगर अगर आपको मालूम होता तो वो आपको नहीं छोड़ेंगे, आप उनके वाकिफ नहीं हैं, जाइए। वो औरत रो रही थी और हाथ जोड़ने लगी। हजरत साहब कहने लगे कि आप यहाँ से चले जाइए। हजरत साहब कहने लगे, ए माई, क्यों रो रही हो? किसकी भी बात है? कह रही है तुम मुझे नहीं छोड़ेगा, क्या तुम मुझे इत्मीनान से सब कुछ बता सकती हो? वो औरत कहने लगी, आप जानते होंगे कि यह गांव गैर मुसलमानों का है, और अगर उन्होंने आपको यहाँ देख लिया तो वह आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। पहले भी वह हम पर बहुत जुल्म कर चुके हैं। यही कहेंगे कि हमने आपको बुलाया है और आप हमारी मदद के लिए आए हैं। पहले भी उन्होंने हमारा जीना हराम कर रखा है। हजरत साहब कहने लगे कि मैं कुछ भी नहीं जानता, वह कौन है, किसकी बात कर रही हो और आपके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? वह औरत कहने लगे, हजरत साहब, इस गांव में हम चंद लोग ही मुसलमान हैं, बाकी सारे यहूदी हैं। उनको हमसे बहुत जलन होती है। इस पूरे गांव में खत पड़ा हुआ है, ये कहीं पानी नहीं मिलता। जहाँ कुआं खोदा जाए वहाँ कड़वा पानी निकलता है, और एक यहूदी जो बहुत रईस है, उसकी ज़मीन पर एक कुआं है जिसका पानी है। लेकिन मसला हमारे लिए है कि क्योंकि हम मुसलमान हैं, वो हमें पानी नहीं लेने देते। हमारे बच्चे प्यास से मर रहे हैं, कितने इस दुनिया से जा चुके हैं। बच्चों की बात तो दूर है, वो हमारे जानवरों को भी पानी पीने नहीं देते। हमारे जानवर भी कमज़ोर हो चुके हैं। यहाँ बारिश सालों साल तक नहीं होती, लेकिन उसके अंदर रहम नहीं है। अगर कोई भी उसके खिलाफ आवाज़ उठाता है तो मौत के सिवा उसका कोई अंजाम नहीं होता। इसलिए आपसे कह रही हूँ कि आप चले जाइए। अगर उन्होंने आपको यहाँ देख लिया तो वही कहेंगे कि हमने आपको बुलाया है, और फिर वह आपको भी मार डालेंगे। बुजुर्ग कहने लगे, माई, तुम डरो नहीं, जब तुम ईमान लाए हो अल्लाह पे तुमको यकीन भी होना चाहिए। हजरत साहब कहने लगे कि लेकिन तुम लोग जिंदा कैसे हो? अगर वह पानी नहीं देते हैं तो? अरे हजरत साहब, क्या पूछते हैं आप? यह एक शर्त पर राजी होते हैं, अगर कोई इसकी तरफ उनके मजहब में आ जाए तो उनको पानी मुफ्त दे देंगे। बहुत सारे लोग ऐसे झूठ बोलते हैं कि हम आपके मजहब में आ चुके हैं और बेचारे को पानी मिलता है। वो चोरी छुपे मुंह तक पानी पहुंचा देते हैं, क्योंकि मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ, मुझसे पता चला नहीं जाता। हजरत साहब कहने लगे, लेकिन यह बात तो गलत है, वह ऐसा नहीं कर सकते। पानी अल्लाह की दी हुई
नियामत है और उसे रोक नहीं सकते। तुम मुझे उनका पता बताओ, कहाँ रहते हैं। मैं वहाँ अभी यह बातें कर रहे थे कि वहाँ सब कुछ लोग आ गए जिनकी शक्ल स्याह से थी, हाथों में डंडे थे। सकीना बीबी, हम जान चुके हैं कि तुम हमारे खिलाफ क्या कर रही हो। कौन है ये बूढ़ा सख्त? क्या यह तुम लोगों की मदद करेगा? यह तुम लोगों की पानी दिलाएगा? वो हंसने लगे, मजाक उड़ाने लगे। खुद इससे चला नहीं जाता और क्या ये मदद करेगा? अल्लाह वाले बुजुर्ग को पकड़कर अपने रईस के पास ले जाते हैं और वह बुढ़िया औरत रो रही थी। बेचारी वहाँ पहुंचकर हजरत साहब देखते हैं बहुत सारे लोग इकट्ठा थे। हुजूर, ये देखिए, यह कौन है? बुरा शख्स यह हमारे खिलाफ इस सकीना बीबी के पास खड़ा होकर बातें कर रहा था। लगता है यह मदद के लिए आया है। वो रईस कहने लगा, ए बुजुर्ग, कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? तुम नहीं जानते कि यह हमारा गांव है और जो हम कहते हैं वही होता है। हजरत साहब कहने लगे, मैं खुद नहीं जानता कि मेरी मंजिल कहाँ है। मेरा जवाब यही है, चाहे तुम मुझे सजा दो या जो तुम्हारी मर्जी। अपनी मंजिल का पता नहीं। क्या तुम मुसलमान हो? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मुसलमान हूँ। यह बात जब हजरत साहब के मुंह से निकली तो वह और जलने लगे और कहने लगे, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम यहाँ पे आए हो? तुम्हारे पूछे बिना हजरत साहब को इस दौरान गुस्सा आया और कहने लगे, खामोश हो जाओ तुम लोग, तुम्हें क्यों, क्या हो गया है? क्यों इन बेगुनाहों लोगों पे जुल्म कर रहे हो? इनके बच्चे प्यासे से मर रहे हैं, इनके जानवर मर रहे हैं, इन्हें पानी क्यों नहीं दे रहे हो? मैं जानता हूँ कि यह पानी नहीं है, एक कुआं है, तुम्हारा है, लेकिन तुम्हें इन्हें पानी देना होगा। उन्हें गुस्सा आया और कहने लगे, तुम कौन होते हो हमें कहने वाले? आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि हमारे आगे इस तरह जबान लड़ाए। जान प्यारी है तो यहाँ से चले जाओ, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अल्लाह वाले बुजुर्ग मुस्कुराने लगे और कहने लगे, तुम लोगों की यह भूल है कि मैं यहाँ से जाऊँगा? मैं हरगिज़ नहीं जाऊँगा, चाहे तुम जो कुछ कर लो। जब मैं यहाँ पहुँच गया हूँ तो ऐसे नहीं जाऊँगा। तुम लोगों को यह जुल्म रोकना होगा। कितने मासूम बच्चे जो प्यास से तड़प रहे हैं। अल्लाह वाले के सामने यह मुसलमान पे जुल्म का मंजर था। यहूदियों के इस गिरोह में एक बुजुर्ग आदमी बाहर आता है और कहता है, शख्स, अगर तुम चाहते हो कि हम इन लोगों को पानी दे दें तो इनको और तुम्हें हमारी बात माननी होगी। तुम लोग हमारे मजहब में आ जाओ, फिर तुम्हें मुफ्त में पानी दिया जाएगा। इसके अलावा अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे, तुम्हें सज़ा दी जाएगी। यह लोगों की प्यास मरते रहे। बुजुर्ग कहने लगे, क्या तुम कह रहे हो? तुम लोग, ऐसा तो कभी नहीं होगा। तुम चाहे जो कुछ मुझे सजा दो, मैं अपने रब के साथ धोखा नहीं कर सकता। मरूंगा तो उसका नाम लेकर ही मरूंगा। जब उन्होंने देखा कि बुजुर्ग के अंदर तो ईमान का ताकत है और खौफ बिल्कुल नहीं है, हालांकि लोग इसके डर से जाया करते थे और उनकी बात मानने पे मजबूर हो जाया करते थे। उनमें से एक शख्स कहने लगा, अरे रोको तो सही, इसे पता नहीं कि यह क्या क्या तकलीफ देते हैं। जब पानी का एक एक घूंट इसके मुंह तक नहीं जाएगा तब इसे पता चलेगा। एक एक कतरे के लिए तड़पेगा, क्योंकि जो हमारी बात नहीं मानता है वो ऐसा ही करता है। ये बात ये भूल जाएं कि हम इसे यहाँ से जाने देंगे। हम इसे यहीं कैद करेंगे, रखेंगे और पल पल अजीमियत रहेंगे। इस तरह हजरत साहब को कैद कर लेते हैं और औरत जब यह मंजर देखती है तो लगती है, कहती है, मैंने आपसे कहा था ना कि यहाँ से चले जाइए। ये स्याह चेहरे वाले लोग आपको चैन से जीने नहीं देंगे। जिनके चेहरे की तरह इनके दिल भी स्याह है। दिलों की एहसास नहीं है, कभी इसकी फरियाद नहीं है। सुनते हैं बस इसके अंदर एक गरूर है। इसी गरूर ने इनको अंधा कर दिया है। कितने मासूम बच्चे, कितने जानवर, कितनी औरतें, कितने मर्द प्यास की वजह से मर चुके हैं और यही सलामत बचे हैं। इनकी बात मानना है। मुझे इन्होंने जिंदा छोड़ा हुआ है क्योंकि मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ और इनका मानना है कि मेरी उम्र ज़्यादा इनके बड़ों को देख चुकी है, इसलिए शायद मुझे कुछ नहीं कहते, लेकिन अब आपको यह नहीं छोड़ेंगे।
हजरत साहब कहने लगे, आप कैसी बातें करती हैं, अल्लाह से मदद मांगो, वह मदद करेगा। इनकी क्या मजाल, यह तो पागल हैं, इन्हें तो राह दिखाने वाला यहाँ कोई नहीं आया, बल्कि जो राह देख चुके हैं वह भी भटक रहे हैं। एक बार अपने अल्लाह से मांग कर तो देखो, मेरी बात याद रखना, एक दिन आएगा जब यह ज़मीन पानी से सैराब हो जाएगा। यहाँ हर प्यासा चीज़ पानी से भर जाएगी, एक कतरे के लिए भी तरस रहे हैं, वो समुंदर मिल जाएगा। हजरत साहब के मुंह से यह बातें निकल रही थी और वहाँ एक शैतान लोग हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। कहने लगे, अरे पागल तो नहीं हो गए हो, तुम्हें लगता है पानी ना होने की वजह से यह अपना दिमागी तवज्जो पे बैठे हैं, कैसे अजीब बातें कर रहे हो, जगह सैराब होगी। खैर तो यह बारिश सालों तक नहीं होती है, एक दरख्त तक नहीं बचा है, यहाँ कैसे पानी आएगा। हजरत साहब कहने लगे, तुम लोग हो ही नादान, तुम्हें क्या पता जिस रब ने यह कायनात बनाई है उनके कहने की देर है और यहाँ पानी के चश्मे फूट जाने हैं। यह बात तुम लोग जान लो। बुजुर्ग की यह बात सुनकर उन लोगों को और गुस्सा आ रहा था। एक शख्स आया और कहने लगा, ए बूढ़े शख्स, बहुत बक बक कर रहे हो, तेरा यह ड्रामा अब एक झूठी बातें कहीं हमसे बुरा कोई नहीं होगा। इनमें ऐसी बात कर रही है कि औरत का गुस्सा आया और बूढ़ी औरत उस शख्स के मुंह पे थप्पड़ मारती है और कहती है, मैं बस करो, रुक जाओ, खबरदार अगर तुमने इसके आगे तरीके से बात की। उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था, कहने लगे कि अब क्या होगा इसके आगे।